बोला थोड़ा अबाउट, हल्का सा आइडिया दिया है ना, लिखवाना है उसका वो, ताकि आपको नोट रहे और आप एमसीक्यूज निकले। कल मैंने आपको बोला पेटी कैश बुक, you know it's again a cash book. It has a debit side and a, but in the debit side obviously there will be inflows, but yahan utne inflows nahi honge. The inflow will be the cash received from the cashier, head cashier, ya cash received from the head office. Clear hai beta? You got my point? So on this credit side you say the payments, you show the which you make to different parties on account of that. Clear hai beta? तो लिखिए अब बेटा, वो तो डेफिनेशन लिखवाया था कल मैंने। हाँ, लिखिए पहला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ कैश, द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर, रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द left hand side. Full stop. वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, यही डेबिट साइड है ना। दूसरा, पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस are recorded on the petty cash, the payment, ऐसे लिखिए, पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेटी कैश बुक, on the right side of the petty cash book. Obviously you have to record them on the right side of the petty cash book. Clear hai beta? Clear hai beta? The third point, a petty cash book will never have a credit balance. Will never have a credit balance because the cash payments can never exceed the cash receipts. Can never exceed the cash receipts. Can never exceed the cash receipts. ये जाहिर सी बात है जो मैंने आपको बोला. Say your head cashier has given you 10,000 rupees. Clear hai beta? This 10,000 rupees is your inflow. You will be spending from this 10,000. You cannot spend more than this 10,000. Suppose you spend only rupees 9,000. This is what is left 1,000. What will be that? The unbalanced, unspent portion. Huh? Clear hai beta? Full stop. Next point. The closing balance of the petty cash book represents unspent petty cash in hand. है ना बेटा? Unspent petty cash in hand. है ना बेटा? है ना बेटा? Unspent मतलब suppose you are left with 1,000. So this is your unspent amount. This is your. Magar you know now one important thing you got it. It's very basic. One who understood cash book उसके लिए petty cash book आसान है समझना. और उसपे पता नहीं question आएगा भी कि नहीं. अब आएगा अगर तो we should be ready for that. We should know this all. अब इसमें एक important चीज है that once you record it, proof of recording क्या होता है? Proof of recording. Yes, source document. वो क्या होता है? वाउचर्स. वो क्या होते हैं? वाउचर्स. वो में वाउचर्स. मगर इसमें एक चीज है, कभी कभी किसी चीज का वाउचर होगा भी नहीं. जैसे आपने टिप दी किसी को, उसका क्या वाउचर होगा? क्लियर है? उस वक्त आप खुद बनाते हो इंटरनली. क्या बनाते हो? एंड देन यू गेट इट वेरीफाइड बाय द कैशियर और समवन. ठीक है बेटा? लिखिए, ये पॉइंट लिखिएगा, ये जरूरी. आया समझ? यूजुअली यू हैव एक्सटर्नल वाउचर्स. यू हैव, आपको आया समझ? किसी जगह आपको वाउचर है ही नहीं.
कोई चीज है ना, ये ना मामूली आइटम्स, उसके लिए वाउचर ही नहीं है, देन यू कैन सेल्फ जनरेट अ वाउचर। क्लियर है बेटा? लिखिए, रिकॉर्डिंग इन पेटी कैश बुक, किसको? नहीं, कैश बुक हमारा एसेट थोड़ी है, पेटी कैश बुक। ऑब्वियसली जो तुम्हारा कैश है, जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, वो तो एसेट है। ऑब्वियसली वो तो एसेट है, दैट इज कैश इन हैंड। पेटी कैश जो आपका बचा हुआ है वो आपका एसेट है, और जो बिगिनिंग पे है अनस्पेंट, यस दैट इज योर एसेट। आपको आया समझ? वेरी गुड, वंडरफुल। लिखिए, क्या लिखा आपने? हाँ, यस ऑब्वियसली जीरो, यस यस ऑलवेज पॉसिबल। मगर कभी इसकी क्रेडिट बैलेंस या जीरो होगी या डेबिट बैलेंस होगी, जीरो कभी भी पॉसिबल है। लेजर के किसी भी अकाउंट की बैलेंस जीरो हो सकती है इफ द डेबिट्स एंड द क्रेडिट्स आर ऑलवेज इक्वल। आपको आया समझ? आपको आया समझ बेटा? लिखिए, क्या लिखा आपने? रिकॉर्डिंग इन अ पेटी कैश बुक is done on the basis of internal as well as external vouchers. Internal as well as external vouchers, full stop. When external, जो अभी बात मैंने बोली वही लिखवा रहा हूं, when external vouchers are not received, when external vouchers are not received, external क्या? When external vouchers are not received, comma, comma, internal vouchers are prepared. Internal vouchers are prepared and authorized by and verified by an authorized person. And verified by an authorized person. Next. क्लियर है बेटा? इजी। देखिए, पेटी कैश बुक इज बोथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये याद रखिएगा। पेटी कैश बुक इज बोथ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, is both book of original entry as well as book of final entry, as well as book of final entry, comma, as it also serves, as it also serves, as it also serves the role of both journal as well as ledger. Full stop. So there is no need, इसी के साथ so there is no need, इसी के साथ so there is no need to open petty cash account in the ledger. हम मत बनाते ही है फिर कैश अकाउंट, petty cash account in the ledger. We don't prepare it. We don't prepare it then मत। जैसे मैंने आपको कल बोला, हमने कैश बुक बनाई, हम लेजर बनाएंगे बाकियों का, मगर कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे वो तो ऑलरेडी बन गया। दैट्स व्हाई कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। क्लियर है? क्लियर है? और जो ये संभालता है ना पेटी कैश बुक, जिसको मिलता है हेड ऑफिस से कैश, उसको पेटी कैशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटी कैशियर। He maintains and then he receives the cash and then he keeps track of all the payments. क्लियर है बेटा? तो इजी है पेटी कैशियर। अब इसमें होता है टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक्स, वो आपको ख्याल रखना है। क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा, टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। इसमें बहुत कुछ आज आपको थ्योरी पढ़ना है तो ये खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। Types of petty cash book.
लिखिए बेटा, देर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। देर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। आपकी चॉइस से आप कैसे बनाओगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। पहला है सिंपल पेटी कैश बुक, इसको बोलते हैं नॉन एनालिटिकल कैश बुक। क्या? नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये याद रखिएगा इसका दूसरा नाम, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्लियर है बेटा? क्या दूसरा नाम है इसका? सिंपल। दूसरा है दैट्स नोन एज कॉलमनर पेटी कैश बुक। कॉलमनर पेटी कैश बुक, इट्स कॉलमनर पेटी कैश बुक। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। देखिए फर्क क्या है, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा फर्क क्या है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये पूरा याद रखिएगा बेटा, एक एक चीज याद रखिएगा जो बोलते हैं हम। आई ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट। थोड़ा खुद भी पढ़ा करो, कभी मुझे बोलने में कोई चीज रह जाती होगी। कोशिश मैं करता हूं आई गिव ईच एंड एवरी कंटेंट, एवरी डिटेल्ड माइन्यूट डिटेल, वरना पढ़ाते क्या है, ये हो गया जी, ये इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड इनफ्लो आउटफ्लो, बट आई मेक यू राइट एवरी स्टेप एवरी दिस, वो कहीं ना कहीं उससे पॉइंट्स निकलेंगे। देखिए सिंपल क्या होती है, मैं पहले बनाऊंगा फिर लिखवाना क्या है, थोड़ी वहां नोट बनाना है। आपको अक्ल में है ना कि क्या है वही है, अब मैं लिखवाता हूं ताकि आपको जब प्रैक्टिस करोगे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। क्लियर है? सी हाउ दिस सिंपल, व्हाट सिंपल इज, जिसको हम बोलते हैं नॉन एनालिटिकल, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कैश बुक। मतलब ये नहीं लिखिएगा, मैं असल में अगर बनाना होगा किसी को पेटी कैश बुक, वो ऐसी ही बनाएगा जैसे ये होती है। ये सिंपल होता है, यू हैव द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव द राइट हैंड साइड, मगर इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है बनाने का। ये हो या एनालिटिकल हो या नॉन एनालिटिकल हो, तरीका सिमिलर है, बस उसमें कॉलम्स होते हैं। मगर ये उस टिपिकल कैश बुक की जैसी होती, ये नहीं होती है टिपिकल कैश बुक की जैसी, लगभग वैसा ही होता है। अब इसमें ऐसे होता है, इसमें मत इनफ्लोज और आउटफ्लोज उतने होते हैं, इसमें इनफ्लो एक ही होता है। क्या? अमाउंट रिसीव्ड। क्या? तो सबसे पहले यू राइट दिस इज, यू नो द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, एंड देन यू राइट अमाउंट रिसीव्ड। दिस इज सिंपल, ये सिंपल वाली है, अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है बेटा? क्या आपको अमाउंट मिला होगा? क्लियर है? उसके बाद वी ऑलवेज राइट द, या अहन्नत के एक ही कॉलम डेट का, मगर इसीलिए यहां से और यहां से डेट, इसका एक ही कॉलम होता है डेट का, दैट इज डेट कॉलम। इसके बाद ही, क्योंकि इसमें मत, अब मैं रखता डेट, वो क्या रहेगा एक, जब इनफ्लो हुआ, बाकी यहां वाले डेट में क्या होंगे? आउटफ्लो। तो इसीलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, डेट है आपको समझ, दिस इज द वे। और फिर आपका हम वाउचर नंबर होगा, लेजर फोलियो, वो बाद में हम लिखते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स मैं सिखाऊंगा ना, दिस इज अ बेसिक, बस दैट्स इट, हो गया। फिर होता है ऑब्वियसली यहां से वाउचर नंबर हो सकता है, आपका लेजर फोलियो होगा, क्योंकि ओवरऑल इट इज अ जर्नल, इट इज अ सब जर्नल, इट्स अ, तो लेजर फोलियो होगा, लेजर फोलियो होगा, और होगा अमाउंट पेड, बस दैट्स इट। दिस इज व्हाट इट इज, अमाउंट पेड। देखो अब स्टार्ट कैसे होगा, अमाउंट पेड, दैट्स इट, दिस इज इट। ये सिंपल वाली होती है। अब आया समझ? दिस इज अ सिंपल नॉन एनालिटिकल। अब जैसे है आपको जनाब आली 1 जैन है, क्या है से 1 जैन, आपको पुराने 50 रुपए बच गए थे, तो आप क्या लिखोगे उसको? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस। आप उसको इनफ्लो साइड से दिखाओगे ना, है दिखाएंगे ना, है दिखाएंगे ना, वेरी गुड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप यहां से लिखोगे से 50 रुपए बच गए थे। क्लियर है बेटा? अब आपको इस बारी
पेटी कैशियर ने 500 रुपए दिए या 5,000 रुपए दिए। क्या दिए? क्या दिए? आप लिखोगे टू कैश अकाउंट या लिखो टू बैंक अकाउंट। पैसा आया ना, जैसे वहां लिखते थे 5 जैन उसने आपको पैसा दिया। टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, आपकी मर्जी। कहां लिखोगे? यहां से। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इजी। अब इसको क्या करना है? खर्चा सारा इधर ही लिखना है। इसमें यह नहीं होता यहां से आधे यहां से आधे, डेट एक ही जगह। ये भी आया समझ से? 7 जैन आपने पहला खर्चा किया बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट। बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? 50 रुपए। ठीक है, ऐसी यहां से ऐसी यहां से लिखते जाए, ऐसे यहां से। दिस इज अ सिंपल पेटी कैश बुक। इसके कोई कॉलम्स डिफरेंशिएटेड, समझ आया? बेसिक कैश, पेटी कैश बुक। हाँ, अलग अलग। यस। हाँ, यहां से अमाउंट पेड, यहां से अमाउंट रिसीव। डेट भी एक ही जगह और इनफ्लो भी। इनफ्लो के लिए टू, बाकियों के लिए बाय बाय बाय, सब के लिए। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या हो गई? सिंपल। इसको सिंपल इसलिए बोलते हैं हम इनको डिफरेंशिएट करते हम नहीं, फिर देख रहे हमने किस पे कितना खर्चा किया है। एनालिटिकल पे हम इनको यहां से फिर अलग अलग क्या बनाते हैं? कॉलम। उसमें हम बोलते हैं जरा पोस्टेज पे हमने कितना खर्चा किया, रिफ्रेशमेंट्स पे कितना किया, मिसलिनियस पे कितना किया। आपको आया समझ? लिखिए अब इसकी आप डेफिनेशन इसका है? मैंने बोला ना, जो खुद ये है उसकी नहीं होगी, जो बाकी छोटे छोटे अकाउंट्स होगी उनकी हो जाएगी। होगी ना, मैंने तो बोला एक ही की नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? कैश की, पेटी कैश की। अब आपने अब आपको इसमें है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसका तो बनेगा ना। आया समझ? आया समझ? अच्छा, आप बहुत जगहों पे ये देखोगे, यहां पे और एक कॉलम होता है, कभी एक यहां पे एक यहां पे डेट से पहले। ये याद रखिएगा प्लीज, ये याद रखिएगा। डेट से पहले और एक कॉलम होता है। मैं भूल गया था बोलना, आपको कभी भूल जाता है। हाँ, दोनों में, सिंपल हो या एनालिटिकल हो, दोनों में। एक यहां पे इसको थोड़ा कॉलम एक भरिएगा, यहां पे, यहां ये वाला, उसको बोलते हैं सीबीएफ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? कैश बुक फोलियो। क्या? ये कैश बुक का पेज नंबर होता है, कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो। समझ आया? समझ आया? ये सीबीएफ क्या होता है? कभी आ सकता है ना वहां पे सीबीएफ का। ये कैश बुक का पेज नंबर है। असली छना एंडस बनावन कैश बुक ही तो हम ना ये रिकॉर्डेड। अब हम पेटी कैश या अलग निकालते हैं। आया समझ? लिखिए बेटा, क्या था ये? सिंपल। ओके, लिखिए। ऑब्वियसली यस 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 यस। ये दोनों जगह रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वो जनरल बनती है ना पूरे। हेड ऑफिस क्या बनाएगा? ये ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस क्या बनाएगा? कैश बुक। उसको बेचारे को तो बनाना है ना, उसके लिए है ना ये। टू पेटी कैश एक्सपेंसेस। यस। हाँ, जो कितने सारे हुए होंगे। आपको आया समझ? आपको आया समझ? यू गॉट माई पॉइंट? या हम उसमें वैसे दिखाते हैं, दो तरीके हैं दिखाने के। एक हो गया, अब मत आप दिखाओगे उसको पॉइंट पॉइंट वाइज, तो आप उसको दिखाओगे तो पेटी कैश बाय, सॉरी, तो इनफ्लो तो थोड़ी होगा कभी। ये क्या हमेशा होगा? आउटफ्लो होगा ना, आउटफ्लो। तपाली गॉड बोझ। यहां का नहीं, यहां छोड़िए ना बेटा, यहां छोड़िए, यहां छोड़िए। यहां के ये सारे क्या है? हमारे आउटफ्लो। हमने वहां क्या भेजा होगा? कैश। क्या भेजा होगा? वो वहां क्या मैं दिखाऊंगा? आउटफ्लो। है आपको समझ? हेड ऑफिस से मैंने कैशियर को कैश दिया, वो क्या उधर है, तो वो कहां से आएगा? कैश बुक को क्रेडिट साइड से, बाय पेटी कैश अकाउंट। या बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, जी इतने खर्चे हुए, वो दिखाओ ही मत। आया समझ? दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट। आपको आया समझ? तो इसीलिए इसमें सीबीएफ लिखना होता है, क्योंकि इट इज टू बी रिलेटेड विद द कैश बुक।
कैश बुक फोलियो। आपको आया समझ? लिखिए बेटा, लिखिए, सिंपल और नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, सिंपल और नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक is just like a simple cash book, is just like a simple cash book, full stop. It is generally prepared with one common column, for date and particulars, for date and particulars for both, for date and particulars, उसके बाद for both, उधर नहीं for both receipts and payments. receipts क्या होता है? inflows. for both receipts and payments, है ना, एक ही कॉलम है ना, डेट भी एक ही है और ये भी एक ही है. for both receipts and full stop. It is done because of the fact that entries on the receipt side, receipt होते हैं inflow, that entries on the receipt side are very limited, that is one or two only. वो मैंने आपको पहली बात बोली है ना, that is one or two only, clear है बेटा? I told you that in the beginning. अच्छा, कोई मत आया मदिया? अच्छा, कोई आएगा उनको बिठाना, तो वो मेरा पूछेगा तो उनको बिठाना. दैट इज वन और टू. ये मैंने पहले ही आपको बोली बात, याद है? जब मैंने आपको स्टार्ट में बोला है ये आसान है, इसमें हम इसलिए नहीं अलग दिखाते हैं पूरा डेबिट साइड अलग क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड से यहां क्या होंगे? दो. एक तो होगा ओपनिंग बैलेंस और जो पेटी कैशर से कैश मिला. समझ आया? ए बेटा समझ आया? बेसिक. इसीलिए इसमें अब आएंगे किसमें हम? एनालिटिकल. कॉलमनर वो भी ऐसी होती है. आप बोलोगे वो कुछ डिफरेंट होती है? सेम, यहां तक सेम, बस अमाउंट पेड के बाद उसके क्या बनाते हैं हम? अलग अलग कॉलम्स, सो दैट वी कुड ट्रैक डाउन हमें किस पे कितना खर्चा. जैसे मैं आई शो यू, उसमें भी ऐसी बिल्कुल एनालिटिकल वाली. दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड, CBF. क्लियर है बेटा? उसके बाद डेट, नॉर्मल बिल्कुल वही जो अभी आपने सीखा. डेट, उसके बाद पर्टिकुलर. शाबाश. उसके बाद लेजर फोलियो या वाउचर नंबर लिखो, मर्जी आपका नहीं, आपका मर्जी है. वाउचर नंबर है बिल का नंबर, सपोर्टिंग एविडेंस. उसके बाद अमाउंट पेड. इधर तक तो सिमिलर है, बस इसके बाद इसके छोटे छोटे कॉलम्स बनते हैं. क्या बनते हैं? कॉलम्स, ताकि हम अलग अलग इनको ट्रैक डाउन कर पा सके. जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इनने कुछ डिफरेंशिएशंस की है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. आपको आया समझ? हाँ ठीक है बेटा. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. कैरेज एंड कार्ट्रेज. किराया विराया मामूली होता है कभी. कैरेज एंड कार्ट्रेज.
मिसलिनियस, मिसलिनियस हो गया जो बाकियों में नहीं आए, जिनको हम बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे। सन्ड्री, सन्ड्री मीन्स स्मॉल, सन्ड्री मीन्स स्मॉल. You will also see sometimes sundry debtors, huh? ये डेटर्स ही है, एसेट है. आया समझ? इसे कोई फर्क आपको आया समझ? आप बहुत जगहों पे देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्रीज हो गए छोटे मोटे खर्चे. सन्ड्रीज जब खाली होगा, आपको आया समझ? वेरी गुड. चलो अब है सन्ड्री एक्सपेंसेस. बेत्यागर का मर्जी आपका है. और भी आप अगर टेलीफोन या बिल्स, वेजेस हैं, टेलीफोन बिल्स, आप जो कॉलम आप बनाना चाहते हैं अलग अलग ट्रैक डाउन करने के लिए, कुल वेजेस, डेली वेजेस है ना, टिप्स विप्स जिसमें डालोगे, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे ये करोगे. बस ये है कि टू ट्रैक डाउन ये. बाकी तो कोई आया कोई फर्क है? उतना फर्क यही है कि जो अमाउंट पेड है उनको हम डिफरेंशिएट करते. लिखिए अब हेडिंग इसका क्या नाम है इसका? एनालिटिकल और कॉलमनर. कॉलमनर इसीलिए कॉलमनर बोलते हैं बिकॉज यू प्रिपेयर एडिशनल कॉलम्स, यू प्रिपेयर. लिखिए बेटा, इट इज द, इसको लिखिए, इट इज द बेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग Sıradalı. Afra yaz dedim man. Jai may dalay dayus. लिखिए, it is the best way of recording. It is the best way of recording various petty cash expenses. Various petty cash expenses. ब्रैकेट में पेमेंट्स, एक ही बात है ना. पेटी कैश एक्सपेंसेस ब्रैकेट में पेमेंट्स इन सेपरेट कॉलम्स अंडर suitable heads of expenditure. Under suitable heads of expenditure. Full stop. It facilitates the posting of expenses. देखो जो वो बच्चा पूछ रहा था, देखो इसका ये मैं समझाऊंगा. पहले रुकिए अभी वहीं पे. देखो इसका क्या इजी हो जाता है, आप देखिएगा बेटा, इसका क्या इजी हो जाता है. ये पूरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसका फायदा क्या है, ये जो नॉन एनालिटिकल है इसका क्या फायदा है. beni izontuyan işime brother-in-law Mr. Course by Karu. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. गिव मी 5 मिनट्स सर. अब बैठो, तब तक बैठिए आप. गिव मी 5 मिनट्स सर. बैठो आप तब तक आराम. ये मैं ही कर रहा था आपको. बैठो आप आराम से. तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बिगिनिंग पे ही ये बोला. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैंने आपको बोला कि जैसे उस बच्चे ने भी सवाल पूछा, बड़ा बेहतरीन सवाल, सर यहां से पोस्टिंग करनी है. यस, वी हैव टू डू पोस्टिंग. अब एक पोस्टिंग मतलब लेजर. पोस्टिंग मतलब अब क्या है, एक का नहीं बनाना है, पेटी कैश का लेजर. एक पेटी कैश का बन गया ना, वो तो इधर ही पता चला, पेटी कैश का लेजर बन गया, मगर बाकियों का बनाना है ना, किस का, जो बाकी खर्चे किए. अब इसमें क्या हो जाता है, इस इजी हो जाता है. देखो क्यों, जो सिंपल वाला था इससे पहले जो हमने बनाया, उसमें कितने होंगे, बहुत सारे होंगे ना. बाय सन्ड्रीज 10 जगह होगा, बाय टिप्स 10 जगह होगा, उनको जमा करना मुश्किल हो जाएगा ना. अब यहां पे तो आपकी इन किन के लेजर बनाने हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अलग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अलग, कैरेज एंड कार्ट्रेज का अलग. इट्स क्वाइट इजी. आपको आया समझ? ये मैं और बोलूं कि समझाऊं और? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम.
यू नो आफ्टर एवरी जर्नल वी हैव टू मेक अ लेजर। आपको समझ आया? अब सपोज आपने सिंपल कैश बुक बनाई, उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पीछे है। हाँ ये यस यस, इसके सारे पेमेंट्स कहां पे है? यहां पे। अब आपको लेजर बनाना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। वो कितनी जगहों पे होगा? बहुत जगहों पे। तो वो पिक करना थोड़ा ही हेक्टिक, मिस भी हो सकता है उसमें। इसमें क्या आपने बनाए हैं? सेपरेट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल है, इसका लेजर बन गया। आया समझ? इसीलिए मैंने बोला इससे फैसिलिटेशन ऑफ पोस्टिंग इजी हो जाती है। क्या लिखवाया था मैंने आपको? पॉइंट जरा ये पढ़ लीजिए बेटा। इट फैसिलिटेट्स द पोस्टिंग ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल्स of the various columns to the respective accounts in the ledger. To the respective accounts in the ledger. Full stop. This book is called analytical petty cash book. Analytical petty cash book, as various payments are automatically analyzed by entering into respective columns. है ना, अलग अलग अपने अपने कॉलम में रह जाता है। You got it? आपको पता है ये बात, एक नोट एक लिखिएगा, ये प्लीज नोट एक लिखिएगा। आई वॉन्ट यू टू नो दिस। यू नो, नाउ यू नो इट्स ऑल्सो ए जर्नलाइज्ड लेजर, है ना? मगर जर्नलाइज्ड लेजर किसका है? ये पेटी कैश का, बाकियों का नहीं। बाकियों का बनाना है जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, है ना? से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्रीज एंड ऑल दैट। उस पर एक नोट लिखिएगा बेटा, ये नोट याद रखिएगा। ये ओवरऑल है ऑन पेटी कैश बुक। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट एक है ये, लिखिए बेटा। ऑल द, फिर समझाएंगे आपको ये, ऑल द कॉलम्स ऑफ एक्सपेंसेस, यही है ना कॉलम्स जो अभी पढ़े। हाँ, अच्छा तरीका है ना कॉलमनर। ऑल द कॉलम्स ऑफ द एक्सपेंसेस आर टोटल्ड पीरियोडिकली, है ना? करते हैं ना इनका टोटल, जो भी ये सीखे। आर टोटल्ड पीरियोडिकली एंड सच पीरियोडिक टोटल्स are individually posted to the debit side of the respective expenses account, to the debit side of the respective expenses account, debit side of the respective expenses account in the ledger, by writing to sundries, हेलो जी, गुड इवनिंग जी। मैंने अभी तो मैं बिजी हूं, आप मुझे कल मंडे कॉल कीजिएगा। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, यस, बट आई एम बिजी राइट नाउ। ओके, क्या बोला मैंने? टू सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक अकाउंट, एज पर पेटी कैश बुक। तो हम ये वर्ड तब यूज करते हैं, याद रखिएगा। हर किसी को जब भी लेजर बनता है ना, तो हम क्या लिखते हैं? ऑन द डेबिट साइड क्या लिखते हैं? टू सन्ड्रीज एज, जैसे इधर आप बोल गए सर क्या बोल रहे हो? जैसे मुझे लेजर बनाना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जब मैं लेजर बनाऊंगा, मैं लेजर के अंदर उसका जिक्र करूंगा। अंदर किसका जिक्र करूंगा? जिसका लेजर, उसका जिक्र होगा ना। जब हम कैश बुक
जब हम मशीनरी का लेजर बनाते हैं, मशीनरी का जिक्र अंदर होगा ना, जिस वजह से ये डेबिट या क्रेडिट हुआ था उस वजह, तो इसका हमेशा क्या आएगा, टू सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक अकाउंट। हर किसी का यही आएगा, टू सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक अकाउंट, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, आउटफ्लो ये होंगे ना। आया समझ? ये वर्ड याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा मुझे आप एक चीज बोलिए, अब आपके साथ थोड़ा सा हम ये खेलेंगे। तो इजी था ये, मैंने आपको बोला जब आपको आया समझ, यू हैव टू मेक अ लेजर, यू हैव टू मेक अ लेजर, यू हैव टू मेक अ लेजर ऑफ दिस, यू हैव टू मेक अ लेजर ऑफ दैट, यू हैव टू मेक अ लेजर ऑफ दैट। अब कितने लेजर बनाने हैं, 5 या 6 से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अलग लेजर बनेगा, इसका कैरेज एंड कार्ट्रिज का अलग लेजर बनेगा। तो हर किसी के डेबिट साइड से मैं क्या लिखूंगा, टू सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक, क्योंकि वही से लिए है ना। बस ये वर्ड याद रखिएगा। आया समझ? यस। जैसे आप उसका लेजर बनाओगे तो डेबिट साइड से ही यहां से बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि इसको मत इनफ्लो आउटफ्लो होगा, इसको एक ही आउटफ्लो है। समझ आया? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आप एक चीज बोलिए, आप कैश बुक बना रहे हैं, क्लियर है? प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके जस्ट अ मोमेंट, आई हैव अ गेस्ट, मैं इसको बोलूंगा, मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? ये बड़ा मुझे टेक्निकली इसका आंसर चाहिए, मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। इमन तब तक आप इनको बोलिएगा कि तहलील साहब, इज माई ब्रदर इन लॉ, प्लीज हेल्प हिम, इनको ये ही वांट्स टू क्वालिफाई दिस, he already he is doing a government job but at a lower level, he wants to not only FA, जो बाकी भी है SSB के जो भी एग्जाम्स निकले हैं अभी, तो थोड़ा सा आप इनके साथ तब तक बात करो टिल आई एम देयर। कैसे क्या करेंगे ये, तो ये समझ आया? ये समझ आया? ओके सी, एक्चुअली वेरी बेसिक आपने यहां बनाई थी, एक्चुअली बेसिक है, उनमें जोर खुश कहता है, यह बना चाहिए शिक्षा। जो पेटी कैश अकाउंट है उसका लेजर बनेगा ना, वो तो ऑलरेडी है। आपको किन के लेजर बनाने? इनके। यस। अब हम पहला लेजर बनाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का। जब हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम का लेजर बनाओगे, अंदर जिक्र आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, क्या आएगा? आएगा जिक्र। इसका क्या आएगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट इनके ये लिखते हैं, बस वही मैंने बोला, हर किसी को लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक। आपको आया समझ? आपको आया समझ? बस वही मुझे बोलना था। कौन? वो भी तो है, हर कोई है, मगर उसके लिए, अपने के लिए, जो बाकी खर्चे हैं उसके लिए थोड़ी है, उसके लिए तो लेजर बनाने हैं ना। जैसे उस बच्चे ने वो बोला, जैसे यस, जैसे आपको कैश बुक बनाई, कैश बुक में आपको सिर्फ कैश का लेजर नहीं बनाना है, बाकी जो सैलरीज है उसका लेजर बनाना है ना, रेंट है उसका लेजर बनाना है ना। आपको समझ आया? अब यहां एक आसानी है आपको इनको टोटल करके ये है। आपको आया समझ? यू गॉट इट क्लियरली? नाउ डोंट डिरेल मी, जो मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है। नाउ आई वांट टू चेक योर रियल नॉलेज। आई विल मेक इट्स अ क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन रियली, आई वांट टू नो हाउ मच यू हैव गेन टिल नाउ। हाँ ठीक है, मैं जान निकालूंगा नहीं आया। दिस इज अ डेबिट साइड एंड दिस इज अ, आई एम मेकिंग अ डबल कॉलम कैश बुक। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ध्यान रखो इधर। डेट, पर्टिकुलर्स, मैं लेजर फोलियो नहीं लिखूंगा, जरूरत क्या है इधर? हाँ, कैश और बैंक। हाँ, now I have a very strong question. This is, I want to know how many of you can know this. Date, particulars, ये सुनिएगा, वो कैश और बैंक, ठीक है? डायरेक्ट पेमेंट बाय Mr. Suhail in our account. By Mr. Suhail in our account rupees 10,000. क्या का? डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? As to Suhail, डायरेक्ट किसमें? बैंक में। Brilliant, brilliant, wonderful. Whatever the date will be, so I'll write to Suhail, yes, and directly in the bank 10,000. Clear है?
वेरी गुड, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू हर्षित बाय चेक ₹9,000, आउटफ्लो। क्या लिखूंगा? बाय हर्षित। कहां से पैसा निकालूंगा? कैश से कि बैंक से? बैंक से, क्योंकि वर्ड चेक है, क्योंकि वर्ड चेक है। वेरी गुड। वट एवर द डेट बी, आई विल राइट बाय हर्षित, बाय, सब कर, बाय हर्षित बैंक में। क्लियर है? हमने इसको पेमेंट किया। अब लिखा है वहां ऐसे ही लिखा है, एंट्री में लिखा है, द चेक गिवन टू हर्षित रिटर्न डिसऑनर्ड। जो आपने हर्षित को चेक दी है वो डिसऑनर हुई है। डिसऑनर मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटे, चाहे सिग्नेचर गलत था, क्या था, आप क्या करोगे? आप इसको रिवर्स करोगे, आप इसको, यस, वेरी गुड। मैं इसको इसी डेट या अगले डेट जिस दिन मुझे इंफॉर्मेशन मिला, आई विल राइट टू हर्षित अकाउंट, यस, बैंक बराबर, ये पैसा मेरा बैंक में वापस बढ़ेगा। समझ आया? डिसऑनर चेक का समझ आया? ये यस, देखा, मुझे पता नहीं है मगर ये मुझे खुद ही दिमाग में आ जाए, आई स्वेयर। तो सीखा अब डिसऑनर को क्या करना है वापस। ये नॉर्मल है, ये आप जर्नल से भी कर सकते हो। अब मैं जर्नल से ये दिखाऊंगा। असल में है ना बेटी ब्रिलियंट, ये सारा है ना जर्नल का खेल। कैसे? आप ये जर्नल से करोगे। आप बोलोगे सर क्या जर्नल, क्या बोलते हो जर्नल? जैसे इसमें जब आपने किसी को चेक दी होगी, एंट्री क्या की होगी आपने? हर्षित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आपने चेक डिसऑनर हुई, इसको क्या हो जाएगा? उल्टा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हर्ष, क्योंकि लायबिलिटी अभी वही है, तो हर्षित डेबिट हुआ था, ये क्या वापस हो जाएगा? क्रेडिट, ताकि बैलेंस अपने पे रहेगी। आउटस्टैंडिंग चेक कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक वर्ड आउटस्टैंडिंग चेक। आपने चेक दी, यू हैव टू इमेजिन ये मेरे अकाउंट से पैसा निकालेगा। अभी उसने निकाले या नहीं निकाले, इसीलिए फिर आगे बीआरएस बनता है। आपने किसी को चेक दी, उसका मतलब क्या है? वो निकाले उससे पैसे, वो उसकी मर्जी है, वो 2 दिन बाद निकाले या 3 दिन बाद निकाले। तुमने उसको चेक दी, तुम्हें अपने अकाउंट से पैसा निकालना है। समझ आया? समझ आया? नाउ इट्स ये समझ आया आपको? देयर इज नथिंग लाइक आउटस्टैंडिंग चेक। अब ये समझे मेरी बात। ये है क्वेश्चन। क्या नाम है आपका बेटा? हाँ, बशारत साहब, बराबर समझिएगा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम बशारत, बस इतना लिखा है, ₹50,000. What will I do? Yes, I will imagine that I am depositing it in the bank same day. In the bank. Very good. To बशारत अकाउंट, डायरेक्ट किस में? बैंक। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब मुझे बशारत ने और एक चेक दी, मगर उसको लिखा है बैंक्ड इन द बैंक आफ्टर 10 days। तो मैं इसको 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं। इसके फिलहाल जब बशारत ने दिए पैसे, आप, मगर मुझे वो तरीका बेहतर नहीं लगता है, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। इसके 2 तरीके हैं। बशारत ने आपको चेक दी, मगर 10 दिन बाद आपने इसको बैंक में डाला। आपने अभी इसको बैंक में, असल तरीका जो है, इसको 10 दिन बाद ही रिकॉर्ड करो। क्या करो? और लिखो टू चेक इन हैंड। क्या लिखो? टू चेक इन हैंड, और डालो किसमें? बैंक। आया समझ? यस। अगर आप लिखेंगे, फिर आपको अभी करना है एज टू बशारत, रखना है फिलहाल किसमें? बैंक में नहीं, फिलहाल किसमें? कैश में। फिर किसमें डालेंगे? बैंक। ये भी एक तरीका है। आपको आया समझ? फिर उसको लिखते हैं तब टू चेक इन हैंड, यहां से वहां से निकलता है वो, मगर बेहतर वर्ड है टू चेक इन हैंड। क्लियर है? इसका मैं आपको एक दूंगा, वो तो मैं आपको एक ना डॉक्यूमेंट एक दूंगा मैं आपको, मुझे भूल गया था।
इतना वहां ये इतना ये ऐसे इससे तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है वहां। क्यों? रीजन क्योंकि फिर उसको 4-5 एंट्रीज देनी है, वो मत लिखेगा इसको। आपको समझ आया? नहीं, उसको है ना फिर एक पूरा कैश बुक देना, वहां मत बनाना है। तो वो ख्याल रखिएगा, वहां पे उस चीज का ख्याल रखिएगा। क्लियर है? ये तो आया समझ आपको? वेरी गुड। इसमें ऐसा ही होता है। हाँ यस, आपको पता है कभी ऐसे होता है इसको, नहीं ये तो पता होना चाहिए। ऐसे बशारत ने मुझे चेक दी, ठीक है, मगर 5 दिन बाद लिखा है, वहां मत एक क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि वहां फिर 5 दिन का उसको देना है ना। बशारत ने मुझे 15th को चेक दी, कैश बुक में 25th को लिखा है ट्रांजैक्शंस में एंडोर्स्ड द सेम चेक टू महाजन। मैंने इसी की चेक महाजन को दी। देते हैं ना एक की चेक दूसरे को। चेक्स के किस्में पता है आपको क्या? क्रॉस्ड चेक, अकाउंट्स पे ही चेक। अगर बेयरर चेक होगी वो किसी को भी दे सकते हैं। मैंने इसकी चेक महाजन को दी, तो इसने जब मुझे चेक दी तब मैं क्या करूंगा? इसको इनफ्लो किस में? कैश में। वेरी गुड। फिर आउटफ्लो किस में से करूंगा? कैश में से। वेरी गुड। ये तो आपको खुद ही आएगा। फिर मैं मत ये बैंक में डालूंगा ही, उसमें इसने मुझे बशार साहब ने चेक दी, मैंने ये बैंक में डिपॉजिट, मैं तब तक किस में इसको रखूंगा? कैश में। 10 दिन बाद यही चेक मैंने किसको दी? महाजन को। मैं क्या करूंगा? बाय महाजन अकाउंट किस में से निकालूंगा? कैश में से, क्योंकि मैंने अपने कैश में ही, वॉल्ट में ही रखी थी। इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं रखा था, इन द फॉर्म ऑफ चेक रखा था। समझ आया? हम हेमत ये बैंक में डालूंगा, फिर वहां से आपको ऐसा समझ। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। आप इसमें एक छोटा सा लिखिए लास्ट पे, इसी में कैश बुक पे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कभी। इसी पे ना ये जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ यस, इसका एक है छोटा सा, ये इस पे ये मामूली सा है, इसको लिखिए सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश। ये बड़ा इजी है। सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश, systems of petty cash, systems of petty cash। लिखिए बेटा, there are, याद रखिएगा, there are 2 systems of petty cash, there are 2 systems of petty cash, comma, on the basis of which cash is given to the petty cashier। cash is given to the petty cashier। देखिए बेटा, आपको मैंने पहले ही बोला, हेड ऑफिस से, यस, हेड ऑफिस से कैश देते हैं ब्रांच को। किसको देते हैं? पेटी कैशियर। पेटी, वेरी गुड। एंड यू नो द वे ऑफ गिविंग कैश टू डिटरमाइन कितना देना है ना। बेसिकली देयर विल बी सम साइंस बिहाइंड इट। ऐसी मत देंगे, कुछ तो होगा ना राज देने का। क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो? हाँ yes, there are some criteria. We use 2 methodologies. We use, उसी को मैंने बोला आपको, सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसीलिए मैंने लिखवाया आपको। जरा पढ़िए लाइन, क्या लिखवाई मैंने बेटा? on the basis of which cash is given to the, ये याद रखिएगा। पहला, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश। दूसरा है इम्प्रेस्ड। क्या? इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इनको खुद पढ़िएगा, मंडे मैं बोलूंगा। होम टेस्ट, होम टास्क भी इतना नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा पढ़ना है। ये क्या है? ऑर्डिनरी क्या है? इम्प्रेस क्या है? इम्प्रेस्ड हो, इंटरेस्ट नहीं हो। इम्प्रेस्ड, वो वाला इम्प्रेस नहीं, ये लड़की मुझसे इम्प्रेस हो गई नहीं। इम्प्रेस
It ends with a D. Perché ho dimmi? एक भी लेक्चर नहीं पढ़ो